Assalamualaikum students. Hope you all are good. Students, open your page number 83 of your social studies book. Today we will start our new chapter number 18, Buddhism and Early Kingdoms. You can see the pictures on page number 83, right? These are the pictures of the statue of Buddha. This is the picture of the statue of fasting Buddha, right? In this chapter, we will discuss the founder of Buddhism, the religion Buddhism, and where this religion is practicing nowadays. We will discuss about Mauryans, Ashoka, and the reforms of Ashoka. Okay. So now we will start reading. Buddhism is one of the main religions of the world, found today mainly in Sri Lanka, Southeast Asia, China and Japan. So these are the countries: Japan, China, Southeast Asia and Sri Lanka, in which Buddhism is practicing nowadays. It was founded by a prince from northern India named Siddhartha Gautama, and the year is 563 before Common Era. So this is the name of the founder of the religion Buddhism. The name is Siddhartha Gautama. You can highlight the name because these are the important things. मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी ताकि आप लोगों को जब आप रिवाइज करें और पेपर के लिए तो आप लोगों को आसानी रहे. You can highlight the year 563 BC and the name of the founder of the Buddhism. Okay. At the age of 29, he left his palace and seeing people poor, ill and dying, he wondered why human beings had to suffer. At the age of 29, 29 साल की एज में उसने अपना पैलेस महल छोड़ा, और जब उसने अपना महल छोड़ा तो उसने महल से बाहर देखा कि जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले वो काफ़ी गरीब, बीमार और भूख से मर रहे हैं. He wondered why human beings had to suffer. वो बहुत हैरान हुआ कि इंसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इंसान क्यों गुर्बत में, बीमारी में मुब्तला है. He left his wife and family and wandered across his kingdom, giving up all worldly goods. उसने अपना महल और तमाम आसाइशें छोड़ी और अपनी बीवी और फैमिली को छोड़कर वो अपने सल्तनत में उसने घूमना शुरू कर दिया इस चीज़ की तलाश में, इस बात की तलाश में कि इंसान इन चीज़ों में क्यों मुब्तला है, क्यों गुर्बत में मुब्तला है, क्यों भूख में मुब्तला है. At last he realized that people suffer because of ignorance and greed. आखिरकार उसे पता चला कि लोग इन चीज़ों में इसलिए मुब्तला हैं क्योंकि वो लालच करते हैं और इग्नोरेंस मतलब कि इग्नोर करते हैं अच्छी बातों को. For the rest of his life, he travelled and preached his fourfold noble truths. अपनी सारी ज़िंदगी में उसने ट्रैवल किया, घूमा और इन 4 चीज़ों की तबलीग की. लाइफ इज़ सफरिंग, लाइफ इज़ सफरिंग इज़ कॉज्ड बाय ग्रीड एंड इग्नोरेंस. इंसान इन चीज़ों में लालच और अपने इग्नोरेंस की वजह से मुब्तला है. सफरिंग कैन बी ओवरकम बाय डिफीटिंग इग्नोरेंस एंड बाय मेडिटेशन. अगर इंसान इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है तो उसे इबादत करनी चाहिए और इग्नोरेंस से लड़ना चाहिए. पीपल मस्ट फॉलो द 8-fold पाथ. लोगों को इन 4 असूलों पर अमल करना चाहिए. और दीज 8-fold path is on your page number 84. You can see the blue bullet box over here. Buddha's noble 8-fold path. This is the important information. 4-fold path and 8-fold path. Okay. So first 8-fold path is right belief. सही चीज़ पर बिलीफ रखना चाहिए. राइट थॉट, अच्छी सोच रखनी चाहिए. राइट स्पीच, अच्छा बोलना चाहिए. राइट एक्शन, अच्छा काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए. राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, अच्छे तरीके से रहना चाहिए, मतलब सही तरीके से कमा कर रहना चाहिए. राइट एफर्ट, सही चीज़ को पाने की कोशिश करनी चाहिए. राइट रिमेम्बरेंस, अच्छी बातों को याद रखना चाहिए. एंड राइट मेडिटेशन,
और सही तरीके से इबादत करनी चाहिए. ओके, दीज आर द 8-fold path of Buddhas. Okay, so Gautama was called the Buddha, which mean the entitled one. This is also the important point, that Gautama Buddha was also known as entitled one, ऐसा जो रोशनी आपको दिखाए. बुद्धिज़्म बिलीव इन द साइकिल ऑफ रीबर्थ. बुद्धिज़्म के जो लोग हैं, जो बुद्धिज़्म रिलीजन को मानते हैं, वो दोबारा पैदा होने पर यकीन रखते हैं. दैट व्हेन एनीथिंग डाइज इट्स सोल और स्पिरिट इज रीबॉर्न. वो ये एज्यूम करते, समझते हैं, उनका बिलीफ है कि जब भी कोई चीज़ मरती है तो उसकी जो रूह है और स्पिरिट है, रूह जो है वो दोबारा से पैदा की जाती है, वो दोबारा से पैदा होती है. इफ़ अ पर्सन हैज़ बीन गुड इन लाइफ, अगर तो पर जो है अपनी ज़िंदगी में इंसान ने अच्छे काम किए हों, ही और शी विल बी बॉर्न इन अ बेटर और हायर पोजीशन. तो वो अगले अपने दोबारा से जब वो पैदा होता है तो अच्छे ओहदे पर और अच्छी पोजीशन में पैदा होता है, ना कि कोई जानवर या बुरी पोजीशन में पैदा नहीं होता. इफ़ दे हैव बीन विकेड, अगर वो अपनी ज़िंदगी में बुरा रहा हो, दे विल बी रिबॉर्न इन अ लोअर स्टेट, तो वो बुरी हालत में पैदा होता है. दिस इज़ कॉल्ड कर्मा. यही किस्मत है, मतलब कि इस चीज़ को कर्मा उसने कहा है. और कर्मा का क्या मतलब है? किस्मत. ठीक है, कर्मा का मतलब है कि जो आप जैसा आप आज करेंगे वैसा ही कल आपके साथ होगा. ओके, दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट व्हाट इज़ कर्मा. ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. सो यू कैन राइट दैट इफ़ अ पर्सन हैज़ बीन गुड इन लाइफ, और ही और शी विल बी बॉर्न इन अ बेटर और हायर पोजीशन. Okay, so those who are very good reach a state of peace called nirvana. जो बहुत ही अच्छे रहे हों वो निर्वाणा में जाएंगे, उस जगह पे जाएंगे जिस जगह को निर्वाणा कहते हैं. जैसे हम ये कहते हैं ना कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, तो वो उनकी जन्नत का नाम जब वो समझते हैं कि जिस जगह पे वो जाएंगे अपने अच्छे अमाल की वजह से, वो निर्वाणा कहलाती है. दिस इज़ ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट. Buddhism spread across northern India and gradually to Sri Lanka and the Far East and China. सबसे पहले बुद्धिज़्म किस जगह पे फैलना शुरू हुआ? नॉर्दर्न इंडिया, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द फाउंडर ऑफ द रिलीजन वॉज फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया. सो इट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया एंड आहिस्ता आहिस्ता इट स्प्रेड टू श्रीलंका एंड फार ईस्ट एंड चाइना. ठीक है, श्रीलंका में, फिर इंडिया के बाद श्रीलंका में फैला, और श्रीलंका के बाद आहिस्ता आहिस्ता चाइना, जापान, म्यांमार, इन जगहों पे फैला. ओके, होप you get more interesting knowledge about this religion. So now we are going to start the Mauryans. The Mauryan. Before starting the topic, I am going to tell you something about the Mauryans. So, Mauryas was actually the most important ruler of this East India dynasty. And what was the name of this dynasty? The name of dynasty was Ashoka. Actually, he was deeply moved by the courage at the Battle of Kalinga and converted to Buddhism. Okay, so start reading. The next invasion of the subcontinent in about 300 BCE came from the east. BCE, before Common Era, and not the west. The powerful kingdom of the Mauryan emperor was based in what is now the modern state of Bihar. जो आजकल बिहार है वो असल में मौर्यंस, जो मौर्यन बादशाह थे उनकी सल्तनत आजकल जो इंडिया में बिहार सूबा है वो उस टाइम के मौर्यन बादशाह की सल्तनत था, और वहाँ से मौर्यंस की सल्तनत स्टार्ट हुई थी. द मौर्यंस कॉन्कर्ड ऑल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड इवेंचुअली टुक द होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट द साउदर्न टिप. जब मौर्यंस आए तो उन्होंने जंग की, और जंग के दौरान उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और आहिस्ता आहिस्ता
सारे सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया सवाए सॉर्दर्न टिप के। यू कैन सी द पिक्चर on the top of page number 84, right? This is a statue of fashionable lady of the Mauryan court। उस टाइम पे at that time this was situated in the Mauryan court and this is the statue of fashionable lady। Okay, so their great empire was run by very strict laws। उनकी जो सल्तनत थी उसके रूल बहुत ज़्यादा सख्त थे। देयर वॉज पुलिस एवरीवेयर टू मेक श्योर द लॉज वर ओबेड। जो वहाँ के बादशाह थे उन लोगों उसके उधर के बादशाह ने पुलिस को रखा हुआ था ताकि वो सारे सल्तनत में देख सके कि उसके जो बनाए हुए लॉज हैं उन पर वो लोग अमल कर रहे हैं कि नहीं। द स्टेट ओन्ड ऑल द एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस एंड पीपल हैड टू पे टू यूज़ दैम। जो वहाँ के बादशाह था, हुक्मरान था स्टेट का, उसने तमाम घोड़े और हाथी अपने कब्जे में कर लिए थे और अगर लोगों ने उन्हें यूज़ करना होता था तो दे हैव टू पे फॉर देयर यूज़। बट दो इट सीम्ड हार्श, life for most people improved as many schools and colleges were opened, new roads were built and people could live and travel safely। लेकिन इसके साथ साथ एक सच ये भी था कि लोगों ने लोगों में इम्प्रूवमेंट आ गई थी क्योंकि उस दौर में बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस खुल गए थे, नई सड़कें बन गई थी और लोग आसानी से और सेफली सफ़र कर सकते थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, अशोका। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मौर्यन emperor and certainly one of the greatest was Ashoka। So this is also about the one of the Mauryan emperor whose name was Ashoka। और the time period of Ashoka was 269 to 232 before common era। At first he was like any other ruler। सबसे पहले तो वो बाकी तमाम हुक्मरानों की तरह था। फाइटिंग टू इंक्रीज हिज एम्पायर। वो जहाँ पे भी उसके आर्मी जाती, सिपाही जाते तो वो उस जगह पर पहले वो जंग करते ताकि वो अपने एम्पायर को बढ़ा सके और जीत कर वो जगह अपने कब्जे में लेकर अपने सल्तनत को बढ़ा सके। आफ्टर वन ग्रेट बैटल टू कनकर द स्टेट ऑफ कलिंगा, जब कलिंगा को हासिल करने के लिए जंग हुई तो ही सॉ 100,000 soldiers laying dead and another 150,000 people made prisoners। At that time Ashoka saw that 100,000 soldiers lying dead के वो 1,00,000 जो थे सिपाही वो मर गए थे और दूसरे 1.5 लाख जो थे वो कैद में आ गए थे। This upset him so much that he decided he would never go to war again and that his empire would be ruled by peace। उस टाइम पे after the war of Kalinga he thought that now I will never get any other part of the subcontinent or any other part of the world and I will never fought again to conquer or to increase my empire। उसने सोचा कि अब मेरी सल्तनत जो है वो सुकून से, मेरी सल्तनत का रूल है कि वो सुकून से रहेगी, वो लड़ाई नहीं करेगी किसी भी जगह को कब्जा करने के लिए। ही बिकेम अ बुद्धिस्ट एंड रूल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पीपल। ही कन्वर्टेड हिज रिलीजन टू बुद्धिज़्म। वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया, उसने बुद्धिज़्म को अपना लिया। और बुद्धिज़्म का रूल क्या था कि पहला रूल ही उसका पीस था कि आपने अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारनी है और लोगों के फ़ायदे के लिए गुजारनी है। तो वो उसने क्या किया, जैसे वो बुद्धिस्ट बना तो उसने ये रूल बना लिया अपनी ज़िंदगी का कि मैं लोगों के भले के लिए, फ़ायदे के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा, मेरी सल्तनत में लोगों का फ़ायदा ही होगा। अशोका's रिफॉर्म्स, ही अबॉलिश द कास्ट सिस्टम।
उसने कास्ट सिस्टम जो था, जैसे पहले यू कैन रेड अबाउट द कास्ट सिस्टम इन द रेन ऑफ अशोका, जो उसने बनाया था, जो 4 कास्ट थी और सब कोई किसी की कास्ट में एंटर नहीं हो सकता था। उसने वो कास्ट सिस्टम ख़त्म कर दिया और कहा कि तमाम लोग बराबर हैं। देयर वर हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड एनिमल्स। ही बिल्ड द हॉस्पिटल फॉर द केयर ऑफ पीपल and as well as for animals. The hospitals were staffed by monks who grew herbs for medicines. उसने क्या किया कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ रखा वो मॉन्क्स थे, यानी कि जो बुद्धिज़्म के जैसे टेम्पल के प्रीस्ट होते हैं, इसी तरह के बुद्धिज़्म में जो उसके जो गुरु ने कह लें या जो होते हैं ना बड़े, वो मॉन्क्स कहलाते हैं। और उन्हें उसने कहा कि वो दवाइयों के लिए जड़ी बूटियाँ उगाएं। देयर वर रेस्ट होम्स फॉर ओल्ड पीपल। और उसने ये भी रूल रखा कि वो बूढ़े लोगों के लिए घर बनाएगा। द किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वॉज फॉरबिडन। उसने जंगली जानवरों का शिकार करने से अपनी रियासत को मना कर दिया। पनिशमेंट्स वर मेड लेस स्वेयर। और जो पनिशमेंट्स पहले बहुत स्वेयर दी जाती थी उसने वो भी ख़त्म करके बहुत कम पनिशमेंट्स कर दी। ऑल रिलीजन्स वर ट्रीटेड अलाइक। तमाम रिलीजन को उसने कहा कि तमाम रिलीजन इक्वल हैं और सबको इज्जत दी जाए और एक जैसे हकूक़ के साथ वो रहें। यू कैन सी द पिक्चर। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ 3-line कैपिटल एट द टॉप ऑफ वन ऑफ अशोका's एडिक्ट पिलर। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ, ये अशोका की सल्तनत में उस ज़माने की एक पिक्चर है। वहाँ पर ये स्टैचू था जो इस पर 3 शेरों के शेर बने हुए हैं। ओके, सो नाउ ओपन पेज नंबर 85 and to make sure the people knew what the law were, Ashoka had them carved on huge pillars and rocks throughout his empire. और लोगों को ये कहा कि इन रूल्स पर आपने लाजमी इन लॉज पर अमल करना है। और हर जगह उसने बड़े बड़े पिलर्स और रॉक्स बनवा दी, मतलब कि वहाँ पर अपनी सल्तनत ने बड़े बड़े पिलर्स बनवा दिए और उसके ऊपर शेर की तस्वीर उसने बना दी, ताकि लोगों को ये पता चले कि यहाँ पर ये रूल है। अशोका's laws were known as edicts. उसके जो लॉ थे वो एडिक्ट्स कहलाते थे। ऑफ कोर्स दिस डिड नॉट प्लीज एवरीवन। जाहिर सी बात है कि ये रूल तमाम लोगों को इन रूल्स ने खुश नहीं किया, क्योंकि जो उस टाइम पे कास्ट सिस्टम के जो ऊंची कास्ट के लोग थे वो अपनी कास्ट में रहना पसंद करते थे, वो अपने निचली कास्ट के लोगों को पसंद नहीं करते थे। और जब ये रूल आया कि तमाम कास्ट एक जैसी ट्रीट होंगी और इस तरह से, तो जाहिर सी बात है उस टाइम के जो ब्राह्मण्स या ऊंची कास्ट के लोग थे, अपर लेवल के लोग थे, उन लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। The high caste Hindus such as the Brahmins and Kshatriyas did not like their power being taken away. उन्हें ये अच्छा नहीं लगा इन दोनों कास्ट के लोगों को कि उनसे उनकी पावर ले ली जाए, क्योंकि उस टाइम पे इन 2 कास्ट के पास पावर थी कि वो लोगों पर हुक्मरानी कर सके। रिमेंबर द पिक्चर ऑफ ब्राह्मण। याद है ना कि वो पुजारी की जो वो प्रीस्ट की उनकी पिक्चर थी, और वो उस टाइम पे प्रीस्ट ही उन पर जो वो कहते थे वो वहाँ के लोग करते थे। और द सेकंड पिक्चर वाज Kshatriyas एंड द पीपल इंक्लूडेड Kshatriyas वाज किंग, soldiers and the leader of the state. So they did not like that their power being taken away. When everyone was supposed to be equal, जब तमाम लोगों को इक्वल ठहराया गया और उनसे उनकी पावर ले ली गई तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। आफ्टर अशोका's डेथ, अशोका की डेथ के बाद there were 7 weak Mauryan emperors. उसके डेथ के बाद जो 7 बादशाह आए वो सातों के सातों वीक थे, कमज़ोर थे। वो अपनी बात पर अपने अमल लोगों से नहीं करा सके, इन लॉज पर अमल नहीं करा सके। एंड देन द ग्रेट एम्पायर कोलैप्स्ड।
और जिसकी वजह से उनकी कमज़ोर होने की वजह से, उनके ना हुक्म मनवाने की वजह से ये एम्पायर, ये सल्तनत तबाह हो गई। विद द हिंदस एंड देयर कास्ट सिस्टम बैक इन पावर, और तबाह होने के बाद जो कास्ट सिस्टम थी वो वापस आ गई और तमाम पावर हिंदुओं की कास्ट सिस्टम के पास, मीन्स द पावर came back to Brahmins and Kshatriyas. You can see the picture Ashoka with one of his edict pillar. This pillar is known as edict. This is the pillar for their law. So this is the picture of Ashoka, the ruler or emperor of Mauryans. Right? This is also the picture of the pillar of edict. Okay. Now open page number 86. These are the pictures of Ashoka with their people. Okay. In the first picture you can see Ashoka were built for people and animals. This is the picture of the hospital that was built in the reign of Ashoka for the care of people and animal. These are the picture of homes that were built, that he was built for old people and orphans. In this picture, these are the punishments that were made less severe. You can see सिर्फ खड़ा किया हुआ है, इतनी severe नहीं है punishment, and many prisoners रिलीज, और ज़्यादातर को छोड़ दिया जाता था सज़ा के बगैर अगर उनकी उनका कोई गुनाह ज़्यादा नहीं होता था, कोई गलती ज़्यादा नहीं होती थी, बड़ी नहीं होती, तो उन्हें छोड़ दिया जाता था. पीपल वर स्टिल एग्जीक्यूटेड फॉर सीरियस क्राइम्स. इवन के सीरियस भी किसी ने अगर क्राइम किया होता था तो भी उसे छोड़ दिया जाता था थोड़ी सी सज़ा देकर. बट दे वर गिवन 3 days टू सेटल देयर अफेयर्स, और उन्हें 3 दिन दिए जाते थे कि इन 3 दिन में वो ठीक हो जाएं और दोबारा से ये काम ना करने का यकीन दिलाएं. दिस इज़ द पिक्चर इन विच ऑल रिलीजन्स एंड पीपल वर ट्रीटेड अलाइक. इसमें के तमाम लोगों के लिए रूल एक ही है, एक जैसे ही. उन्हें पैसे अगर देने तो एक जैसे ही दिए जाते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रियाज हो या शूद्राज हो. अशोका गेव लार्ज सम ऑफ मनी टू जैनिज्म एंड अदर बिलीव्स. और तमाम जो इसके अलावा भी वहाँ के रहने वाले लोग थे जो बुद्धिस्ट नहीं थे, जैनिज्म के थे या अदर बिलीफ के कुछ और भी थे, अदर रिलीजन के, उनके साथ भी सेम इख्तियार होता था रवैया. दिस इज़ द अदर रूल ऑफ अशोका दैट नो हंटिंग वॉज अलाउड इन द रेन ऑफ अशोका. उस टाइम पे था ना, बिफोर द रेन ऑफ अशोका, people kill wild animals for their own purpose. So Ashoka ने ये चीज़ मना कर दी. The killing of many wild animals was forbidden, though eating meat was allowed, including beef. सिर्फ बीफ का खाना अलाउड था, उसके अलावा तमाम जानवरों की हंटिंग मना कर दी थी. This is the other picture of the reign of Ashoka. In this picture, new roads were made with trees planted along them for shade. There were wells every 10 kilometers and sometimes rest houses for travelers. ये उसने लोगों के केयर के लिए ये चीज़ें बनाई थी, दरख्त, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साया, और लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे वो रेस्ट कर सके. और जगह जगह उसने रेस्ट हाउस बनाए थे और रोड्स अच्छी बना दी थी ताकि लोग सेफली और अच्छे तरीके से सफ़र कर सकें. दिस इज ऑल्सो द पिक्चर ऑफ द reign of Ashoka. Monks grew herbs as medicine of people and animals. Okay, he staffed monks in his hospital, and monks को उसने कहा था कि grew herbs for medicine of animals and people. So these all are the pictures of the rule of in the reign of Ashoka.
ये सारे काम अशोका के ज़माने में होते थे, जबकि आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका व्हेन द पावर केम बैक टू हिंदस एंड कास्ट सिस्टम केम बैक, देन दीज ऑल थिंग्स वर फॉरबिडन। मतलब कि ये तमाम काम ख़त्म हो गए, क्योंकि रूल जो था वो किसके हाथ में आ गया था? ब्राह्मण्स और क्षत्रियास के हाथ में। सो दीज आर द क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन. I must believe that you can do the answer of these questions by yourself, but I will share the answer of the question and the link from which you can get more information about the religion of Buddhism and the Mauryan Empire. Okay, hope you all enjoyed the information of Ashoka and Mauryans and Buddhism. Okay, Allah Hafiz.